Greeting students. So up to now in chemistry portion we have already discussed the chapter number 1 chemical reaction and equation, chapter number 2 acid base and their salts. Next part in the chemistry portion is chapter number 3 metals and non-metal. So from this chapter half of the chapter have been removed by the CBSE. The metallurgical part means how we can extract metal from their ore कि metal को उसके ore में से हम कैसे निकालते हैं, इस वाले पोर्शन को CBSE ने रिमूव कर दिया for this year. So physical properties of metal and non-metal. All of you have already studied that physical properties of metal is this non-metal in the 8th class, even in the 9th class. So in this class 10th topic, metal and non-metal, what we have to discuss first is what are the physical properties of metals and non-metals. Second, the chemical properties of metals and non-metal. Next is how metal and non-metal react with each other and what type of bond they will form. कि metal जब non-metal से react करता है तो कौन से compound बनाता है and what type of chemical bonding is present in between metal and non-metal, which is specifically called ionic bonding, and the compound which is formed is called ionic compound. Next topic will be the compound which is formed by reaction between non-metal and non-metal. non-metal के साथ react करके क्या बनाती है, जो compound बनाती है, those compounds are called generally covalent compound. So we will discuss about metals, non-metal, how they react with each other, metal plus non-metal, and the second one is non-metal and non-metal, the ionic compound and the covalent compound. We will discuss them one by one. So in this first module of chapter number 3, we will discuss or we will start the topic with the physical properties of metals. So first topic of this chapter is physical properties of metal. So most of the physical properties you are already aware. So how questions come from this physical property portion we will also discuss during this detailed discussion. So first portion is the physical properties of metal. So first property that we will start is physical state. So the meaning of physical state is whether the substance exists in solid state, liquid state or gaseous state. So most of the metal exists in solid state. For examples I will only write the symbols. For example, gold that exists in solid state, silver, platinum, so these iron, copper. So these are examples of those metals which generally exist in solid state. If I am saying solid state, I am considering the condition. कि condition को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है. So condition is room temperature. कि metal will exist at room temperature in their solid state. And all of you are already aware about the exception. Exception is mercury. Mercury is a metal which exists in liquid state at room temperature. Next is the color. So color, for the color part, most of the metal exists in, or the color of metal, most of the metal color is gray. So ज्यादातर metal जो भी आप discuss करोगे वो gray color की होंगी. As you can see here of this board, ये aluminium panel लगा हुआ है और जो color होता है aluminium का वो क्या होता है gray. For example, iron which is not rusted, iron जिस पर जंग नहीं लगा हुआ है, rusting नहीं हुई है, that exists in that gray in color. Silver metal, चांदी जिसको हम बुलाते हैं, the color of that silver metal is gray. So most of the metal exists in gray color. And again the exception, and all of you are aware about the exceptions. Gold, the color of gold is not golden, it is yellow. And the color of copper is reddish brown. So when you peel the wire which are at your home, कि हम जो वायर वगैरह आपने कभी देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन को पील करते हुए जब उसको ज्वाइन करना होता है या फिर आपने कभी स्विच या प्लग चेंज किया हो तो आप उसको रिमूव करते हो. जनरली द मेटल वायर इज
made up of copper and which is reddish brown in color, and the gold which is yellow in color. So also learn the exceptions portion. Next is the hardness or tensile strength. Hardness, you are already aware about the term called hardness. Hardness का मतलब क्या है कि कोई चीज क्या है, हार्ड है, उस पर आप प्रेशर लगा रहे हो वो टूट नहीं रही है. Second is the new term is called tensile strength. Tensile strength का मतलब होता है, I have already written the definition part, the load bearing capacity. The meaning of tensile strength is कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेस को बियर कर सकता है. नॉट द मेंटल स्ट्रेस, द फिजिकल स्ट्रेस. कि फिजिकल स्ट्रेस का मतलब क्या है, इसको मैं खींच रहा हूं और कब तक वो स्ट्रेस को बियर कर सकता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ. ऑल द ब्रिजेस, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस आयरन मेटल ब्रिज, कि जब ट्रेन क्रॉस करती है जनरली रास्ते में आयरन के ब्रिजेस होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस जनरली मेड अप ऑफ आयरन. द मीनिंग ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लोड बेयरिंग कैपेसिटी, कि उसके ऊपर हम स्ट्रेस डालेंगे तो कितना स्ट्रेस वो बियर कर सकता है. आयरन बीम्स विच वी यूज एट अवर होम, कि जब हम घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं घर की, तो हम क्या डालते हैं उसके अंदर, आयरन बीम्स डालते हैं, जिसको हम हिंदी में सरिया बुलाते हैं. तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट आयरन बीम? इट एक्ट लाइक ए सपोर्टिंग मटेरियल, कि सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है पिलर्स को, पूरे घर को. वो किस वजह से? बिकॉज द आयरन हैव लोड बेयरिंग कैपेसिटी. फॉर specific, if you want to write this specific word, the iron has tensile strength. So most of the metals generally possess the tensile strength. Again we will write the exceptions कि जो ये नहीं करते हैं. For that you can write soft metal. Soft metal, sodium, potassium, lithium, etc. So they are called alkali metals. सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, लिथियम हो गया, इतने सॉफ्ट होते हैं यू कैन इजीली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. कि जैसे आप पनीर को कट करते हो तो आराम से नाइफ उसके अंदर चला जाता है. सिमिलर इन केस ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम, दे कैन बी इजीली कट विद द हेल्प ऑफ ए शार्प नाइफ. सो दे आर जनरली कॉल्ड सॉफ्ट मेटल, सोडियम, पोटाशियम, lithium. So these are the first three property. Next is the lustrous. Most of the metal possess this property, means metals are shiny. कि वो क्या करते हैं, शाइन सी रहती है उनके ऊपर. एज यू कैन सी हेयर, इसके ऊपर जो बल्ब की लाइट आ रही है उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, या प्रॉपर सन की लाइट आती है. फॉर एग्जाम्पल दिस गोल्ड रिंग. गोल्ड किस लिए हम यूज करते हैं ज्वेलरी? द मेन रीजन इज इट इज लस्टरस, एंड द सेकेंड रीजन इज उसको जंग वगैरह नहीं लगता है, विल नॉट करोड. So most of the metal are lustrous. If you want to write the exception, in example you can write silver, gold. These are the lustrous metal, that is why they are used for jewelry making. Next is the exception. In exception you can write the soft metal. The sodium, potassium, lithium are generally you can write under the, उनकी luster जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, और you can also write they are non lustrous. Next property is called sonorous. कि all the metals are, most of the metals are sonorous. Sonorous means they will produce ringing sound. कि whenever you are writing the meaning of sonorous word, don't only write कि वो क्या करेंगे, sound produce करेंगे. Sound तो non metal भी produce करेगा. जैसे बोर्ड है, इसको मैं हिट कर रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड. सो सोनरस इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द टर्म रिंगिंग साउंड. जैसे स्कूल बेल होती है, उसको हम हिट करते हैं हैमर से, वो क्या प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग साउंड. सो प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट. सो एग्जांपल एज मेनी एज यू कैन राइट. फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर. सो व्हेनेवर यू आर एक्सप्लेनिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑलवेज राइट द एग्जांपल. Even in one of the board exam you will find, and the question has been asked in a manner, define the term ductility, malleability, conductivity, sonorous. What are these terms? Explain with the help of examples. So fifth property was sonorous, कि they will produce ringing sound when hit with an object. So iron, aluminium, copper. Next is the ductility. Ductility का meaning यहाँ पे आप कंडक्टिविटी से कनेक्ट मत करना, कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी को एक साथ रख देते हैं. दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, बट इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी, तो कीप इट लाइक दिस, व्हिच कैन मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू दिस थिन वायर. कि मेटल को हम अगर खींचते हैं तो उस पर क्या बन जाती है,
वायर बन जाती है, मीन दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर। नेक्स्ट इज द यू कैन राइट अंडर द एग्जांपल्स ऑफ डक्टिलिटी। हम वायर किसकी बनाते हैं, आयरन की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की। क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी लाइक विच इज द बेस्ट डक्टाइल मेटल। तो बेस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। कि 1 ग्राम गोल्ड अगर हम लेंगे तो उसको हम स्ट्रेच करना शुरू करेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आई थिंक 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम बना सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड के साथ। तो दिस इज द बेस्ट डक्टाइल metal. If someone asks you what are the poor ductile metal, in that case you can write the soft metal, sodium, potassium, lithium. They are the conductor of electricity, but wire वगैरह नहीं बनाते हैं इसके साथ हम। Next is the malleability, mean they can be beaten into the thin sheet. कि metals जितनी भी sheet आप देखोगे metals की, जैसे aluminium foil is also an example of aluminium शीट। कि हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं, उसको बीट करते रहते हैं हैमर के साथ या किसी बड़े हैमर के साथ, तो वो बिल्कुल पतली होती जाती है और एक बिल्कुल फाइन थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो इफ समवन आस्क यू which is the best malleable metal, then you can write the again gold. So best ductile metal is gold, best malleable metal is gold. क्योंकि शीट तो हम आयरन से भी बना सकते हैं, एल्यूमिनियम से भी बना सकते हैं, कॉपर से भी बना सकते हैं। इफ द क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट वन, जिसकी सबसे पतली से पतली हम क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, दैट इज द गोल्ड. इफ यू रिमेंबर द topics that we discussed in the 9th class, in that those topics we discussed Rutherford model of और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें उसने क्या यूज किया था, गोल्ड की फॉइल। क्यों यूज की थी, बिकॉज कि गोल्ड की हम पतली से पतली फॉइल बना सकते हैं, उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो वाई गोल्ड वॉज सेलेक्टेड, बिकॉज गोल्ड इज द बेस्ट मेलिएबल मेटल। उसकी हम पतली से पतली क्या कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द थर्मल conductivity, which allowed the heat to pass through them. So most of the metals are good conductor of heat. Maximum metals क्या हैं, वो अपने में से heat को क्या करने देते हैं, पास होने देते हैं। And all of you are aware कि most of the heating vessel की, जो घर पे हम metal के vessels use करते हैं, metal के pan use करते हैं for the cooking purpose. Why? Because metals are the good conductor of electricity. Similarly in the industry we use the boilers. बड़े बड़े रूम से भी बड़े हम क्या यूज करते हैं, बॉयलर्स यूज करते हैं। उसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या वाटर को बॉयल कर रहे हैं। तो जनरली दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल। तो इफ समवन आस्क यू बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, डोंट राइट द गोल्ड। तो बेस्ट वन इज सिल्वर। कि सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है हीट का वो कौन है, सिल्वर है। If someone asks which metal is poor conductor of heat, you can write Pb, which is the lead, Hg, which is the mercury. So mercury and lead, they are the poor conductor of heat. If someone asks you the best, best एक ही होता है, ये ध्यान रखना। In best don't write copper, iron, best एक ही है, वो कौन है, silver. Next is the electrical conductivity की, which allows the current to pass through them. And all of you are aware कि maximum जो metal हम wires हम बनाते हैं metal electricity की transmission के लिए, they are all made up of metal. Again electrical conductivity, best one is the silver, good one copper, silver, good one अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है which metal is the best conductor of electricity, then you have to write silver. Which metals are the good conductor of electricity, write 2 examples, iron, copper, aluminium, silver you can write, but silver की तो वायर हम बनाते नहीं है ना। And all of you are aware about the reason why silver cannot be used for making wire. कि चांदी से हम तारे क्यों नहीं बनाते, वायर क्यों नहीं बनाते, रीजन इज द इकोनॉमिकल रीजन, कि वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम बेटर क्या करते हैं, we try to make the wires either by copper, aluminium और iron. तो हमारे घर में जितनी भी फिटिंग होती है वायरिंग की घर बनाने के टाइम पे, वो जनरली हम किस चीज की वायर, कौन से मेटल की वायर बनाते हैं, कॉपर की। और जो बाहर अगर आप देखोगे एक मोटी सी वायर होती है, वो मीटर से हमारे मेन फ्यूज तक आती है, वो ब्लैक कलर की एक मोटी सी वायर होती है, दैट इज जनरली मेड अप ऑफ aluminium. So poor conductor of electricity, again the lead, mercury, they are the
poor conductor of electricity. During the electricity topic we discuss electric fuse. इलेक्ट्रिक फ्यूज में हमारी दो मेटल होती है जो एलॉय हम यूज करते हैं, लेड एंड टिन. लेड क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज व्हाई इट इज यूज देयर इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज. नेक्स्ट इज द हाई डेंसिटी. तो मैक्सिमम मेटल्स फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब की क्या रहती है, जनरली हाई डेंसिटी रहती है. लो डेंसिटी वाले आप कौन से लिख सकते हो, सोडियम, पोटेशियम. एक्सेप्शन जिनकी लो डेंसिटी रहेगी, सोडियम, पोटेशियम, lithium. Next, one more question that comes from this physical properties of metal is their melting point and boiling point. So most of the metals have high melting point and boiling point. For example, iron approximately near to 1400, और बहुत सारी मेटल्स होती है इससे भी ज्यादा हो रहता है उनका, ठीक है, 800, 800, 900, 1000, 1200, 1400, तो इतने ज्यादा उनके क्या रहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं. अब नेक्स्ट चीज जो है इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है इस लास्ट प्रॉपर्टी में से, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसके अंदर आप एग्जांपल में तो आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सब लिख सकते हो. एक्सेप्शन क्या लिख सकते हो कि आपसे अगर कभी पूछते हैं कि नेम द मेटल विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इफ यू वांट टू राइट इज दिस सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. ये सॉफ्ट मेटल होती हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, इसकी वजह से वो क्या होते हैं, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं. तो एक्सेप्शन जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट इज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. और इफ वांट टू राइट मर्करी, मर्करी एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. क्यों है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है. वन मोर थिंग एड इन दिस last property is this, I am writing here, gallium and cesium. So in gallium, after writing up to this point, along with the gallium and cesium you have to write they have low melting point, लेकिन थोड़ा सा ऊपर होता है रूम टेम्परेचर से. तो जनरली गैलियम और सीजियम जो है वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे. बट एज सून एज यू पुट दैट दीज टू मेटल इन योर पाम, ये अपने हाथ के अंदर, ऐसे मान लो ये है हमारी गैलियम का एक पीस है, तो अगर उसको मैं अपनी पाम पे रखता हूँ, उसको बंद कर लेता हूँ, तो वो क्या करता है, मेल्ट हो जाता है. क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, नेम द मेटल्स और नेम टू मेटल्स विच विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट व्हेन यू पुट देम ऑन योर पाम. कि अपने हाथ के ऊपर रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगी. तो वो कौन सी दो मेटल होती हैं, गैलियम और सीजियम, बिकॉज दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट बट स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो इस वजह से वो इतने मेल्ट नहीं होते हैं. उसकी बजाय क्या होते हैं, जब उसको हम हाथ पे रखते हैं तो दे विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड स्टार्ट मेल्टिंग. तो ये क्वेश्चन भी आता है कि नेम टू मेटल्स विच विल लिक्विफाई एट व्हेन यू पुट देम इन योर पाम. कि पाम के अंदर रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे. तो आई होप all these physical properties are clear to everyone. So final conclusion is physical state, exception. Physical state मतलब maximum metal solid state में रहती है, maximum metals का कलर ग्रे होता है, maximum metals are hard and high tensile strength. Exception is the soft metal. Next is maximum number of metal possess the phenomena of lustrous. metals क्या होते हैं, shiny होते हैं. Exception क्या है, soft metal. नेक्स्ट इज सोनोरस, कि जब हम उसको हिट करेंगे दे विल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. नेक्स्ट इज एक्सेप्शन में अगर आप लिखना चाहो सोनोरस में तो देन यू कैन राइट द सॉफ्ट मेटल, वो इतना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज द डक्टिलिटी, दे कैन बी स्ट्रेच इनटू द थिन वायर. बेस्ट इज द गोल्ड. अदर एग्जांपल यू कैन राइट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. नेक्स्ट इज द मेलेबिलिटी, कि अगर हम बीट करते हैं तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो बेस्ट कौन सी होती है हमारी, गोल्ड. बाकियों की भी बना सकते हैं लेकिन बेस्ट वन इज गोल्ड. लेकिन गोल्ड की हम फॉयल यूज करते हैं, तो कई बार आपने देखा हो, या तो ज्वेलरी बनाने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर कई जगहों पे गोल्ड वो मिलते हैं, स्वीट्स मिलते हैं, तो गोल्ड की फॉयल. मैक्सिमम तो सिल्वर की फॉयल आपको मिलेगी स्वीट्स के ऊपर. नेक्स्ट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, बेस्ट वन इज द सिल्वर, पुअर वन आर मर्करी एंड लेड. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बेस्ट इज सिल्वर, पुअर वन लेड एंड मर्करी. नेक्स्ट इज द हाई डेंसिटी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. लो डेंसिटी किनकी होती है, सॉफ्ट मेटल्स की, सोडियम, पोटेशियम, lithium. Next is the high melting point and boiling point. So I hope these physical properties are clear to everyone. If you still have any doubt, you can write in the comment section. Now you can take the screenshot and can write
in your sphere notebook under the heading physical properties of metal. So thank you students.